কি আশা করেছিলাম অন্তত 4-5 বার বাংলার নামটা শুনবো বা বিটা শুনবো, সেটাও শুনতে পারিনি। সুতরাং ইলেকশন সামনে, তাতেও একটুও কিছু দিল না। বাংলাকে বঞ্চিত করতেই থাকছে, আগামী দিনে করবে। ফিনান্স কমিশন তো কোনো ব্যক্তির কমিশন নয়, ফিনান্স কমিশন কোনো সরকারের নয়। ফিনান্স কমিশন একটা প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ আমাদের দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো, কেন্দ্রের একটা রোজগার আছে, রাজ্যের একটা রোজগার আছে, আবার কেন্দ্র রাজ্য মিলিয়ে একটা রোজগার আছে। জিএসটি যেমন হয়েছে, সেই জিএসটির পর এটা আরো বিস্তারিত। তারা ঠিক করে যে এই যে ডেভলিউশন হবে, অর্থাৎ এই যে বিকেন্দ্রীকরণ হবে, যে ফান্ডে যে ভাগ হবে, কেন্দ্রীয় সরকারের যে রোজগার, কেন্দ্রের যে রাজস্ব, সেই রাজস্বের কতটা পরিমাণ রাজ্যগুলোকে দেওয়া উচিত, তার জন্য এই ফিনান্স কমিশন তারা তার মাপ তৈরি করে দেয়। সেটা হয়ে গেছে 41%। এটা কারোর দয়া নয়, রাজ্যগুলো এটা পাওনার বিষয়, এটা কোনো দয়া দাক্ষিণ্য নয়। এতদিন এটা পুরনো অনুমোদন ছিল ফিনান্স কমিশনের, অনেক দেরিতে এটা করছে কেন্দ্র। এবার দেখাবো আপনাদের ছোটখাটো কর ফাঁকিতে যেটা শাস্তির সংস্থান এতদিন ছিল, সেইটা বদলে গিয়ে জরিমানা যদি দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে ছাড় পাওয়া যাবে। এই কথা আজকে বাজেটে ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। কর ফাঁকিতে জেলের বদলে অতিরিক্ত 10% জরিমানা দিলেই ছাড়। ছোটখাটো ফাঁকিতে জেল নয়, জরিমানা। ধার্য করের যে 10% অতিরিক্ত শুধু সেটুকু দিলেই হবে। কি বললেন দেখুন একবার। To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty and would thereby get immunity from prosecution. देखिए, पहले तो ये है कि आप जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, पत्रकार साथियों, आप सब हाउस में थे, आप में से बहुत लोग मीडिया गैलरी में उपस्थित थे। आपने ये देखा है कि जो बजट पेश किया गया, 1 घंटा 25 मिनट का फिनांस मिनिस्टर का स्पीच, 85 मिनट का स्पीच, 85 मिनट मतलब 5100 सेकेंड। इस 5100 सेकेंड में बंगाल का एक बार नाम तक नहीं दिया गया, एक बार भी, मतलब बंगाल मेंशन ही नहीं किया गया। और बंगाल छोड़ दीजिए, जितना भी कम्युनिटीज है, चाहे फार्मर हो या देश के युवा हो, किसी के लिए कॉन्क्रीट जो सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल इंडिया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बात करता है, युवकों को रोजगार कैसे मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा या किस दिशा में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है, उसको लेके कॉन्क्रीट कोई चर्चा नहीं है, कोई मेंशन नहीं है बजट में। फार्मर्स के लिए कोई फिनेंशियल सिक्योरिटी या इनकम स्टेबलाइज करने का कोई तरीका, ताकि किसानों का कुछ मदद मिले, उसका कोई तरीका नहीं है। और कोई भी कम्युनिटी के लिए कोई यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है। तो दिस बजट इज अ फेसलेस बजट, बेसलेस बजट एंड अ विजनलेस बजट। लेकिन सरकार कह रही है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए तमाम जो है कदम उठाए गए, खेलो इंडिया, खेलो मिशन के तौर पर किया गया महिलाओं की। सरकार कह रहे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार तो कहेंगी, सरकार अगर बजट पेश कर रहा है उसको डिफेंड करने का जिम्मेदारी सरकार का है। टू मी द बजट इज मोर लाइक अ गवर्नमेंट सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट रिटन बाय इट्स ओन PR डिपार्टमेंट। दिस बजट doesn't have any concrete solution to offer. आप कह रहे पश्चिम बंगाल के लिए कुछ नहीं मिला? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मुझे दिखा दीजिए बंगाल का एक नाम मेंशन किया हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप दिखा दीजिए। जी बिल्कुल भाई, 5100 सेकंड का बजट स्पीच है आपका, 1 सेकंड दिखा दीजिए जहाँ पे बंगाल मेंशन किया है, 1 सेकंड में। जब बंगाल को बांग्लादेश के नजरिया से अगर कोई देखता है, तो देश के केंद्र के सरकार देखता है, यहाँ पे बैठे हुए मिनिस्टर्स देखता है, और जिसने बजट पेश किया वो देखते हैं। हम लोग को अगर बांग्लादेशी कोई बोलता है, तो यहाँ पे बैठ के जो बजट पेश किया है और जो बजट लिखा है, जो सरकार ने पेश किया है, वो सरकार देखता है।
नहीं तो आपका 85 मिनट का बजट स्पीच में बंगाल का एक बार मेंशन भी नहीं होगा। कुछ रेलवे आप पिछला बार जो वादे किए थे जल जीवन मिशन का 2525 करोड़ जो बजट में प्रॉमिस था वो आपने रोक के रखा है। तो जो लास्ट ईयर आपने वादा किया था वही नहीं निभाया। अब नया वादा क्या करेंगे? ज्यादा घोषणाएं होती है तो कहा जाता है चुनावी बजट है, क्या ये वजह रही क्या? नहीं, चुनावी बजट तो वो तो आप कहेंगे, लेकिन हम लोग आशा नहीं करते इस सरकार से। 2021 के बाद से बीजेपी के सरकार जिस तरीके से बंगालियों को अत्याचार किया है, तो हम लोग की तरफ से कोई चुनाव का प्रत्याशा नहीं था, क्योंकि इनको पता है बंगाल में खर्चा भी करेंगे तो हारेंगे। तो फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव इफ यू सी, दे हैव प्रेफर्ड नॉट टू स्पेंड एनी मनी ऑन बंगाल बिकॉज दे नो दे आर गोइंग टू लूज द स्टेट लॉक स्टॉक एंड बैरल टू तृणमूल। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।